Yes, good morning, madam. Good afternoon, all of you. So we'll wait for 2 more minutes. Let me in, please. Okay, beta. We'll discuss. Actually, we are discussing about frog circulatory system, है ना? We are discussing about frog circulatory system के बारे में discuss करने वाला है. Actually, we discussed earlier heart के बारे में बोल दिया हम. आपको ये बोलना पड़ेगा vascular system. ये frog का blood vascular system है ना बेटा? Is it open vascular system or closed vascular system? Yes. This is closed circulatory system है बेटा. Then एक बार याद दिलाऊं मैं, एर्थवर्म का closed, कॉकरोच का open, अभी ये फ्रॉग का closed, बाकी ह्यूमन बीइंग closed vascular system. Okay, closed blood vascular system. Number of chambers in the heart. आप बोलो बेटा, number of chambers in the heart. Very good. 3. 13 नहीं है वो, 13 कॉकरोच का है. 13 कॉकरोच का. 2 auricles होगा and 1 ventricle. 2 auricles and 1 ventricle है बेटा. चलो. Deoxygenated blood. कलेक्शन करने वाला कौन है बेटा? Deoxygenated blood collected by superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava, inferior vena cava. The superior vena cava and inferior vena cava opens into, I think I'll get the answer. I'll get the answer from you.
आपसे आता है आई थिंक opens into नहीं बेटा रॉन्ग राइट एट्रियम इज रॉन्ग पहले एक बड़ा सा डक्ट आएगा वो डक्ट के बारे में पूछ रहे हम superior vena cava and inferior vena cava opens into the right atrium yes very good sinus venosus opens into sinus venosus ये चाहिए बेटा okay then sinus venosus opens into right atria इतना टाइम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे बिकॉज आगे है कंपैरिजन ह्यूमन से कंपेयर करने वाला है हम व्हेन वी गो टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमको ह्यूमन बीइंग में क्या बोलेंगे हम साइनस विनोसस इज एब्सेंट बोल लिया तो दैट मींस इंफीरियर एंड सुपीरियर विना कैवा आर ओपनिंग डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम ऐसा आपको समझना पड़ेगा ओके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी लिखे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहां से बेटा बॉडी पार्ट से है ना बॉडी पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड स्किन मेजर वही है ना बेटा लंग्स एंड स्किन क्या बोले हम लंग्स एंड स्किन फ्रॉम लंग्स एंड स्किन with the help of oxygenated blood collected एक मिनट हम एक काम करेंगे that ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा then बाद में we'll write back again fourth point we'll write in detail okay very good pulmocutaneous vein with the help of pulmocutaneous vein चलो बेटा हो गया स्क्रीनशॉट ओके yes number 4 oxygenated blood collected by oxygenated blood collected by pulmocutaneous vein collected from lungs and skin beta oxygenated blood collected by pulmocutaneous vein collected from lungs and skin and opens into the pulmocutaneous vein where it opens चलो एक काम करेंगे पूरा सीक्वेंस लिखेंगे हम from the lungs and skin pulmocutaneous vein collects the blood pulmocutaneous vein collects the blood and opens into the left atria okay opens into the left atria this is the complete story beta point number 4 circulatory system में हो गया स्क्रीन में नहीं है तो आपको ये समझना है स्क्रीनशॉट लेना है और एल्स इफ यू हैव ए नोटबुक अगर आप मेरे साथ लिखे तो और अच्छा होगा आए तो वही करेंगे ना हम जब आप आ गए यहाँ पे क्लास में बैठे कोई बोलेगा क्या बाद में स्क्रीनशॉट ले लो आई एम गेटिंग ए साइट नहीं आपको पूरा लिखना पड़ेगा आपका स्क्रीनशॉट खत्म होने वाला है ओके और क्या बेटा और क्या बोलना है all these particular things are not new already we are seen in the diagram एक बार डायग्राम में तो देखे ना हम so just डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं हम we are writing the description of the diagram चलो right atria auricle जो भी हो atria and auricle you can use the same word no matter right atria left atria opens into आपको बोलना पड़ेगा right atria left atria opens into
ventricle, very good, common है वो for both. That's why what kind of blood can be expected in the ventricles? Mixed blood beta. Okay, mixed blood. Okay, can I call this as this kind of circulation of the heart is said to be incomplete double circulation? क्या बोल सकते हैं हम इसको? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोले तो डबल आया बट बोथ गेट यूनाइटेड हियर, इसको बोले हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अगर हमारा देखे तो आपको समझ में आएगा, ये देखिए दैट ह्यूमन हार्ट विथ 4 चैम्बर्स, दैट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंड दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डबल सर्कुलेशन बोल सकते हैं हम। बट यहाँ पे क्या है बेटा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वी कैन से हियर, ब्लड इज मिक्स। फिर हम पूछे तो आपको बताना पड़ेगा एनिमल डाइवर्सिटी 2, एनिमल किंगडम चैप्टर में आएगा बेटा, फिर आएगा ये सब। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग लिटिल एक्सटेंशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हो गया? हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट, मिक्स्ड ब्लड बताए थे हम, एंड मिक्स्ड ब्लड इटसेल्फ सप्लाइड टू ऑल ओवर द बॉडी। वेंट्रिकल्स supply blood to all over the body, all over the body with the help of NCERT का लिख रहा हूं बेटा मैं, कोनस आर्टीरियोसस, कोनस आर्टीरियोसस इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग। जो हम लिखे थे पहले वो ट्रंकस आर्टीरियोसस बोले थे हम, ट्रंकस आर्टीरियोसस, दैट आल्सो आई एम राइटिंग हियर। सो दोनों का याद रखना पड़ेगा, कोनस आर्टीरियोसस और ट्रंकस आर्टीरियोसस, blood to all over the body, ventricle supply blood to all over the body, either it is lungs or skin or body part, जो भी हो सप्लाई यहां से होना पड़ेगा। ओके, ventricle supply blood to all over the body। Very good, very good, this much number of people। ओके बेटा, क्लियर? देन ब्लड के बारे में देखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 7, ब्लड। आरबीसी रहता बेटा यहाँ पे, आरबीसी, एंड WBC is also there, and plasma and thrombocytes, यहीं पे लिखेंगे, फंक्शन भी हो जाएगा। आरबीसी के बारे में मालूम करना है तो आरबीसी इज ओवल इन शेप, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। क्या मतलब बेटा ओवल न्यूक्लिएटेड क्यों बोल रहे हैं? ह्यूमन बीइंग में आए तो हम ये बोलना पड़ेगा, हमारा आरबीसी बाइकॉनकेव एंड विदाउट न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे हम, बाइकॉनकेव एंड यून्यूक्लिएटेड। WBC का तो मालूम है हमको, इट्स फॉर डिफेंस, डिफेंस, wherever you say WBC, डिफेंस, आर्मी है वो। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करेगा बेटा? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना
plasma transport hormones. Okay, plasma is going to transport hormones, and plasma contain, चलो छोड़ दो, nothing, अभी ज्यादा बताए तो, thrombocytes for blood clotting. एल्बुमिन ग्लोबुलिन का हम ह्यूमन बीइंग में करेंगे, यहाँ पे क्यों लिखने का है? हो गया, ब्लड, आरबीसी, ओवल, न्यूक्लिएटेड, एंड वी नो दिस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Any help for easy learning? I know बेटा, after all reading the text, structural organization के बारे में, particularly cockroach and frog, while reading आपको ये problem आएगा. That means whether you are perfect or not, means that something is there is an edge, something there is an edge, ऐसा लगता आपको, है ना? तो आपको क्या करना है फिर? Last week itself structural organization का पूरा questions भेजे थे हम, है ना? Full questions, structural organization का पूरा questions list, NCERT का list, questions का list भेजे थे हम. Okay, so वहां पे देखिए आप whether you are able to answer the questions or not, and if you are able to answer the question, समझो आपका 100% प्रिपरेशन हो गया. Okay, 100% प्रिपरेशन हो गया. कोई तरीका नहीं रहता, पढ़ा जस्ट पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, क्लोज द टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन पेपर भेजे ना बेटा, वो आंसर करने के लिए कोशिश करो आप. दैट 100 क्वेश्चंस में 50 आए तो आपको 50% आ गया, बाकी का 50 फिर टेक्स्ट बुक ओपन करने का एंड पढ़ दैट, रीड अगेन दैट टू गेट टिल द परफेक्शन. दैट्स इट. ओके, चलो मूविंग ऑन. हो गया बेटा? कुछ दैट स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ, नेक्स्ट. Along with the blood vascular system, there is another system which you know, I think, I am thinking that you know that system. चलो आप बताइए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के साथ और एक सिस्टम एसोसिएटेड, चलो आप बताइए बेटा कौन सा सिस्टम है वो, which is associated with the, along with blood vascular system, along with blood vascular system, yes, am I getting answer? No? Want hint बेटा? Respiratory system नहीं है वो. The system where our Eukarya Bancroft is living, circulatory system का ही बोल रहे हम. Along with the blood vascular system, the circulatory system include, the circulatory system include, it was related to Eukarya Bancrofti. अगर Eukarya Bancrofti, yes, very good, आ गया आंसर. Include lymphatic system, lymphatic system, very good बेटा. lymphatic system क्या है? lymphatic system में lymph रहेगा, colorless fluid. colorless क्यों है? it is without RBC. lymph रहेगा, and lymphatic channels, channels का मतलब vessels बोल सकते हैं हम. lymphatic channels रहेगा, lymph glands रहेगा, पूरा मिलके क्या बोले हम? lymphatic system. lymph is a colorless fluid without RBC, without clotting factors. clotting factors नहीं रहता बेटा.
सर्टेन प्रोटीन्स आर एब्सेंट जो बोले ना हम वहां पे, दैट विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड विदाउट एल्बुमिन प्रोटीन। याद रखिए सर्टेन प्रोटीन्स बोल के दिया, सम प्रोटीन्स बोल के दिया, वो प्रोटीन का नाम लिख रहे हैं हम, विदाउट एल्बुमिन। ब्लड में जो है ना, that blood is with RBC, blood is with clotting factor, blood is with albumin. So फर्क क्या है बेटा? lymph with blood, blood is red in color, RBC रहता ना, blood is red in color, lymph is white color. Why? because lymph में क्या नहीं रहता जो blood में है, lymph में क्या नहीं है जो blood में है, lymph में RBC नहीं रहता बेटा, clotting factors are absent and albumin is absent. So वो याद रखना पड़ेगा, either it is human being or frog, क्वेश्चन तो यही बनेगा। Nothing is great bro, only you see NCERT before answering. ये बताएगा, NCERT देख के बताएगा। एल्बुमिन प्रोटीन है बेटा, एल्बुमिन इज द प्रोटीन जो ब्लड में है, यहाँ पे नहीं रहता। सो काम क्या है वो मत पूछने का, दैट वो हम चैप्टर 18 में देखने वाला है। सो ऐसा एक एडिशनल पॉइंट रहेगा बोल के, एल्बुमिन के बारे में वी आर गोइंग टू सी इन चैप्टर नंबर 18। सो दो बार रिवीजन होगा ना, इसलिए बोल दिए हम। एल्बुमिन का आप लिख सकते हैं, बट अगर हम लिखे तो फिर वो क्या है पूछेगा ना, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा ये, कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड फ्लूइड का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा। सो कैसे करेगा वो मैकेनिज्म हम देखने वाला है इन चैप्टर नंबर 18 एनसीईआरटी +1 का। या इंटरकनेक्टेड है, जो हम फ्रॉग देख रहे हैं ना बेटा, फ्रॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, वो फ्रॉग का ये लिंक हमको चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 18 में मिलता हमको, बिकॉज कंपैरिजन है ना, कंपैरेटिव स्टडी है ना, सो मिलता, एंड एनिमल किंगडम में भी मिलता। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग विथ ग्रेट पेशेंस, एक एक पॉइंट लिख रहे हैं हम। फ्रॉग बोले तो वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉग, इंटरमीडिएट एनिमल, एम्फीबिया। So how amphibia के बाद, that means here we are saying great, human being is great। कैसे बताना है human being great? आपके नीचे कोई है क्या? है, देखो फ्रॉग को 3 chambered heart है, हमको 4 chambered, that's why we are great। ऐसा बोलना है तो कोई कंपैरिजन चाहिए ना बेटा, इसलिए we are learning frog। Okay, got it now? चलो हो गया स्क्रीनशॉट। Now this is all about the frog circulatory system। चलो मूविंग ऑन विथ frog excretory system। frog excretory system आपको बोलना पड़ेगा बेटा, frog excretory system में excretory material क्या होता? यहाँ पे I am writing यूरियोटेलिक एनिमल, आप बताइए आप। आधा लिखे थे हम, आधा आपके दिख रहे हैं। या वेरी गुड, एक्सक्रीट यूरिया, यूरियोटेलिक एनिमल क्या मतलब है बेटा? इट एक्सक्रीट यूरिया। वेरी गुड, वेरी गुड, यूरियोटेलिक एनिमल। और क्या रहेगा? ए पेयर ऑफ किडनी, a pair of kidney posterior to the body, pair of kidney posterior to the body, either sides of vertebral column। a pair of kidneys रहेगा बेटा, either sides of vertebral column। यहाँ पे हमारा पे भी सेम vertebral column रहता ना पीछे। okay, the structural and functional unit of kidney
ये आंसर आपको देना पड़ेगा। द स्ट्रक्चरल किडनी में क्या रहता बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन, वेरी गुड, वेरी गुड। नेफ्रॉन, or you may call it as uriniferous tubule. नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोल सकते हैं हम, नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। यस बेटा 2 मिनट। ओके चलो हो गया ना। नेक्स्ट यूरियोटेलिक एनिमल बोले हम, एक्सक्रीट यूरिया and location of the kidney on either sides of the vertebral column। फंक्शन क्या है बेटा? नेफ्रॉन जो बोले ना हम, एक्सक्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, पहले वो बोलना पड़ेगा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करेगा and also they are doing excretion। okay, so osmoregulation and excretion। osmoregulation का मतलब क्या है बेटा? osmo बोले तो वाटर, रेगुलेशन कंट्रोल, osmoregulation वाटर कंट्रोल, याद रखिएगा बहुत बार आएगा इन फ्यूचर। ओके नेक्स्ट नंबर 5, फ्रॉम द किडनी ureters get arised over। फ्रॉम द किडनी, अगर आप देखिए तो कोई भी हो किडनी, दैट किडनी से कौन आएगा बेटा? ureters, these are ureters। where does the ureter is going to be open? from the kidney ureters arise and opens into cloaca। कहाँ पे बेटा? where they are going to open? They are going to open into a common opening called cloaca। okay, so already anus also opens into the cloaca, है ना? चलो इसके बारे में देखेंगे हम फर्स्ट। नेक्स्ट, ureter in male is also called urinogenital duct। क्यों बेटा?
Anyone? Ureter in male, him in male frog, particularly in the male frog, क्या बोल सकते हैं हम इसको? Urinogenital duct. We can say it as urinogenital duct बेटा. यस, क्यों बोले ऐसा हम? ह्यूमन बीइंग के बारे में तो रुको, आएगा आएगा। ह्यूमन बीइंग के बारे में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एनसीईआरटी +1 ये सब ह्यूमन बीइंग का ही है। या कॉमन पाथ ऑफ यूरिन एंड स्पर्म्स, ये अच्छा सा आंसर है बेटा। दैट इट आल्सो कैरीज इन मेल, it carries excretory materials and sperms. Okay. यूरिन बोले तो आपको समझ में आना चाहिए ना excretory material बोल के। It carries urine, excretory material and also the sperms. इसलिए क्या बोले हम इसको? Urinogenital duct. We called it as urinogenital duct. इतना है बेटा excretory system के बारे में। That's all. क्या सेम पैथ एक्सक्रेटरी मटेरियल्स का एंड इसका पैथ तो सेम रहता है बेटा। चलो, एनी डाउट्स? Any doubt बेटा? Shall I raise this? ओके, नंबर 6 है ना? इन फीमेल ureters and genital duct are separate and separately opens into the cloaca. Separately opens into the cloaca. Separately opens into the cloaca. Okay, beta. In female, ureter and genital duct are separate. Ureter carries excretory material and genital duct carry ovum. ये अलग सा है बेटा. They get both separately opens inside. Okay. इसके साथ हम बोल सकते हैं हम क्लोएका। क्लोएका में अगर मेल का देखें तो रेक्टम opens into क्लोएका, ये है बेटा क्लोएका। एंड और क्या? यूरिनोजेनिटल डक्ट opens into the cloaca. ओके, किसका है बेटा? ये मेल का। अगर फीमेल का देखे तो रेक्टम
which opens in the form of anus into the cloaca. Okay, और क्या रहता बेटा, ureters are opening and female genital duct is also opening. अगर कोई क्वेश्चन आए तो यही आएगा. So that's why आपको with diagram I am showing पूरा फ्रैग में फीमेल जेनिटल डक्ट सेपरेटली ओपनिंग है ना. किसका है बेटा ये? दिस इज मेल एंड दिस इज इन फीमेल, मेल फीमेल. चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया. कैमरा थोड़ा नीचे करना है, नहीं डायग्राम थोड़ा ऊपर करना है. थोड़ा डायग्राम ऊपर गया तो कैमरा की कुछ जरूरत नहीं चाहिए. यूरिनरी ब्लैडर भी रहता बेटा यहाँ पे. अगर देखे तो आपको यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा बट अलग सा मिलेगा, नॉट इन फंक्शनल नाउ. दोनों में मिलेगा. यूरिनरी ब्लैडर अलग सा मिलेगा. नॉट इन वर्किंग कंडीशन. और कुछ यूरेथ्रा. अच्छा ये 7th पॉइंट है क्या बेटा? ओके थैंक यू. यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का मतलब वही है ना, यूरिनोजेनिटल कैनाल. वी यूज दिस वर्ड इन ह्यूमन बीइंग. वही है बेटा. यू कैन यूज दैट वर्ड यूरेथ्रा बोल के, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं आप. यूरेथ्रा कह सकते. यूरिनोजेनिटल कैनाल इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा बेटा. Why sir like that? ये तो बताएंगे हम. Why sir like that? ये तो बताएंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताएंगे. पूरा कंपैरिजन आता ना बेटा एनिमल किंगडम चैप्टर के साथ, आपको मालूम हो जाएगा फिश में कैसे हो रहा है, अभी फ्रॉग में कैसे हो गया मालूम हो गया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स. ओके सो आप ऐसा कैसे होता सर, मींस आप क्या पूछे व्हाई सर लाइक दैट, है ना. सो ये व्हाई सर लाइक दैट मींस आपको अच्छा नहीं लगा शायद, ऐसा कैसे, है ना. ये सब क्लैरिटी आएगा बेटा ह्यूमन के साथ. बिकॉज यहाँ पे भी पूछ सकते ना हम, 3 चैम्बर्ड हार्ट. सर व्हाई सर इतना दूर तक आया, कलेक्शन कर दिया बट यहाँ पे मिक्सअप कर दिया. सो अच्छी बात नहीं है ना. या वो अच्छी बात नहीं है. दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड, है ना बेटा. दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड. इम्प्रूव्ड एनिमल एक है. कौन है वो एनिमल? ये सब प्रिमिटिव फीचर्स है ना, ये सब इम्प्रूव करके एक नया एनिमल आ गया. कौन है वो? यहाँ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग आ गया. सो दैट्स व्हाट. ये कंपैरिजन कैसे काम आता बेटा हमको, दैट हाउ वी आर ग्रेट. वहां पे 3 चैम्बर्ड है, हमारा 4 चैम्बर्ड है. वहां पे दैट छोटा सा ब्रेन है, हमारा बड़ा सा ब्रेन है. ऐसा. चलो ब्रेन के बारे में ही देखेंगे हम. फ्रॉग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स nervous system. Moving on to the nervous system. Okay, so this is very important beta. In what way? आपको primary information चाहिए. That वो primary information we are providing here. Central nervous system, peripheral nervous system, autonomous nervous system. ये difference आपको मालूम होना चाहिए.
इसका फुल डिटेल ह्यूमन बीइंग में सीखेंगे हम, बट फ्रॉग में तो प्राइमरी लेवल में क्या क्या है बता रहे हैं हम. What are there? Central nervous system, peripheral nervous system, autonomous nervous system. Central nervous system बोले तो कौन कौन आएगा बेटा? Brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Then peripheral nervous system बोले तो cranial nerves. Cranial nerves. 10 pairs रहता बेटा cranial nerves. 10 pairs are present. हमारा तो 12 pairs है. Spinal nerves. देख के समझ में आया होगा. Nerves arising from the brain are cranial nerves. Nerves arising from the spinal cord are spinal nerves. Brain and spinal cord belongs to central nervous system. Cranial nerves and spinal nerves are belongs to peripheral nervous system. Okay. Autonomous nervous system. बोले तो ये that we have two, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system आएगा बेटा and parasympathetic nervous system. So it was interesting issue here. Sympathetic nervous system क्या करेगा? Stimulation करेगा. When you are running, हमारा heart beat increase होता है ना, कैसे? Sympathetic. फिर normal कैसे आते हैं हम? Parasympathetic. ये सब autonomous है ना, independent. सर हम नहीं करते. आप चाहे तो हार्ट बीट ऐसा रुक के बोल सकते क्या? हार्ट, माय हार्ट स्टार्ट बीटिंग मोर, ऐसा बोल सकते क्या? बोल दिया तो सुनेगा क्या? नहीं ना. दैट मींस हियर इट वाज कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम. क्या बोले हम? ऑटोनमस नर्वस सिस्टम. चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो. Done. These tubes are of another kidney. क्या मतलब? क्या बेटा हमको समझ में नहीं आया. सर्किल मार के जो डाउट भेजे ना, these tubes are from another kidney. नहीं, एक डायग्राम मेल का दिखाए थे हम, एक डायग्राम फीमेल का दिखाए थे हम. मेल का एंड फीमेल का. मेल का जेनिटल डक्ट तो गोनाड से आता ना, टेस्टिस एंड ओवरी. वो बताएंगे, पूरा डायग्राम आएगा. अभी आपको समझना है बोल के एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर बताएंगे ना. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? यहाँ पे कुछ डाउट्स है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, the nerves from the brain called cranial nerves, nerves from the spinal cord called spinal nerves. Autonomous nervous system includes sympathetic and parasympathetic. So clear. Very good. Very good. चलो बेटा. Now let us see about the brain. Brain के बारे में थोड़ा सा देखना होगा हमको. That brain include forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain include olfactory lobes, cerebral hemispheres. Cerebrum भी बोल सकते हैं हम.
Diencephalon. Diencephalon. Midbrain include optic lobes. Then hindbrain include cerebellum. And medulla oblongata. Cerebellum and medulla oblongata. नाम तो याद रखना पड़ेगा बेटा, हमारा ऊपर भी सेम रहता, but little advanced and little extended. Okay, let me show you. Olfactory lobes है ये. These are cerebral hemispheres. Then diencephalon, optic lobes, cerebellum, and medulla oblongata. Actually, medulla oblongata will continue in the form of spinal cord beta. So यहाँ तक medulla oblongata रहता, that will continue in the form of spinal cord. So क्या बोले हम? This is olfactory lobe, cerebral hemisphere, diencephalon and optic lobes. क्या है बेटा ये? cerebellum, and this is medulla oblongata. And medulla oblongata continue as a spinal cord. फंक्शन भी जानने की जरूरत नहीं है अभी, खाली नाम याद रखना पड़ेगा. ओके बेटा, then a brain है ना बेटा, brain. The brain is protected in the cranium. प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन द क्रेनियम. हमारे ऊपर भी है, देखो अंदर ब्रेन रहता, बाहर क्रेनियम. क्रेनियम का ये ओपनिंग है ना बेटा, ओपनिंग को क्या बोले हम? फोरामिन मैग्नम. फोरामिन मैग्नम. ओके, सो ये ब्रेन समझे तो ब्रेन का मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा विल कंटिन्यू एज, ये कौन है बेटा? मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा. Medulla oblongata continue as spinal cord. Medulla oblongata continue as spinal cord through, बाहर कैसे आता वो स्कल से? This is brain. बाहर कैसे आता? There is an opening. Opening को क्या बोले हम? Foramen magnum. Foramen magnum. Human being also the same. Foramen magnum. Yes, any doubts here? ओपनिंग को फोरामिन मैग्नम. हमारा स्कल का ओपनिंग को क्या बोले हम? फोरामिन मैग्नम. या स्पाइनल कार्ड अटैचेस टू द ब्रेन. ऐसा नहीं बोलते बेटा, स्पाइनल कार्ड इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है ना, ये कंटिन्यूशन है, कंटिन्यूशन. ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड मिलके बहुत काम करता, वो काम हम नर्वस सिस्टम में देखने वाला है. क्रेनियम, क्रेनियम बोले तो स्केलेटल सिस्टम का प्रोटेक्शन. चलो वहां पे क्यों, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आर टचिंग द ब्रेन, नहीं ना. हार्ड स्कल है ना बेटा, इसको क्रेनियम बोलते हम. नहीं, स्पाइनल कार्ड इज आल्सो ब्रेन. ऐसे कैसे बोलते आप? स्टमक भी इंटेस्टाइन है ना सर, ऐसा बोलते क्या? नहीं ना. स्पाइनल कार्ड का अलग प्रॉपर्टीज रहता, ब्रेन का अलग प्रॉपर्टीज रहता. बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बोले तो अल्फैक्टरी लोब्स है बेटा. ये अल्फैक्टरी लोब्स है ना,
अल्फैक्टरी लोब्स सामने बल्ब जैसा ही है ना. सेंस ऑफ स्मेल, ये स्मेल देखने वाला. अल्फैक्टरी लोब, ये बल्ब लाइक. और कुछ फोरामिन मैग्नम ऐसा क्वेश्चन पेपर मार्क लगा है तो क्या करें हम. ये ओपनिंग है वेयर ब्रेन कंटिन्यू एज स्पाइनल कार्ड. हाँ, हेलमेट डैमेज हुआ तो अंदर का ब्रेन भी डैमेज होता है. हमारा नेचुरल हेलमेट है. कोई मारे तो क्रेनियम के ऊपर मारेगा, ब्रेन तक नहीं जाता ना. थोड़ा अच्छा सा मार दिया तो ब्रेन तक जाता. ओके. चलो मूविंग ऑन. सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखना पड़ेगा. सेंस ऑर्गन्स, एक टच रिसेप्टर्स रहता बेटा. टच रिसेप्टर्स, दैट मीन्स टच का ऐसा. टेस्ट बर्ड्स रहता. टेस्ट बर्ड्स कहां पे रहता, टंग के ऊपर रहता. टेस्ट बर्ड्स रहता ना. टच रिसेप्टर, टेस्ट बर्ड्स ऐसा. दैट मीन्स ये सेंस ऑर्गन्स बोले तो वही है ना, सेंस ऑर्गन्स. ओके. नेक्स्ट अल्फैक्टरी रहता. अल्फैक्टरी का मतलब स्मेल. टेस्ट का मतलब टेस्टी है. ओके. अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कॉमन क्या है यहाँ पे. दीज आर ऑल सेड टू बी लेस ऑर्गेनाइज्ड. लेस ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑर्गन्स. इसको क्या बोले बेटा हम, लेस ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑर्गन. और यू कैन से लेस डेवलप्ड. थोड़ा डेवलपमेंट कम है यहाँ पे. लेस डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. क्यों बोले ऐसा, कॉमन क्या है यहाँ पे. देर ऑल अग्रीगेशंस ऑफ nerve cells. aggregation of nerve cell बोले तो साइटॉन. aggregation of nerve cell whose endings associated with central nervous system. क्या बोल रहा है ये, they are all aggregation of nerve cells whose endings are associated. कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं रहता बेटा. मीन्स ये सब क्या है, aggregation of nerve cells whose endings मीन्स खाली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स रहता वहां पे. जस्ट क्या बोल रहा है, दिस इज कॉल्ड अग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स. अग्रीगेशन का मतलब ग्रुप है ना. aggregation of cell bodies. ये कहां पे एंड होता, ब्रेन पे. ब्रेन तक जा रहा है इंफॉर्मेशन लेके. ऑल दे आर गोइंग टू द ब्रेन. खाली सम ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स वहां पे that doing this particular total organization. क्लियर बेटा. चलो चल मूव असाइड. कहां पे, ओके. चलो shall I move forward. बाकी का क्या है बेटा, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स.
थोड़ा कंपेयर किया तो, इससे कंपेयर किया तो लिटिल डेवलप ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, किसको बोले हम? ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑर्गन्स, एक मानो आई, आई बोल सकते हैं हम, आई, सिंपल आइज बोले ना हम, वी कैन से सिंपल आइज, आइज पर विजन, ओके। देन और क्या है बेटा? ईयर, ईयर is having tympanum, tympanum एक्सटर्नल ईयर का है ये, एक्सटर्नल ईयर कंटेन tympanum, so that means एक्सटर्नल ईयर में एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज एब्सेंट, है ना? एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज एब्सेंट, सो टिम्पैनम इज एक्सपोज, ये है बेटा। ऐसा कुछ ईयर्स रहता है क्या वहां पे? एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं रहता ना? देन टिम्पैनम इज प्रेजेंट, टिम्पैनम टू रिसीव वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशन। और आईज आर देयर, ईयर्स आर देयर, ऐसा जगह। और क्या ये बताना पड़ेगा, टेक्निकल नेम तो नहीं है वहां पे, बट आई एम गिविंग, याद रखिएगा फॉर फ्यूचर, इधर इट इज ह्यूमन बीइंग और फ्रॉग, जो भी हो एनिमल, इट इज कॉल्ड स्टैटो एकोस्टिक ऑर्गन। मीन्स हम समझते बेटा, ईयर बोले तो फॉर हियरिंग, नॉट ओनली फॉर हियरिंग, इट इज आल्सो फॉर बैलेंसिंग, सो दैट्स व्हाई ईयर को क्या बोले हम? स्टैटो एकोस्टिक ऑर्गन। इक्विलिब्रियम बैलेंस करता, दैट मींस बैलेंस बोले तो ऐसा ऐसा दो चक्कर मारे तो वी लूज बैलेंस, है ना? क्यों? ईयर में गड़बड़ हो गया, दैट मींस ईयर, ईयर मेकिंग बैलेंस, वी आर वॉकिंग प्रॉपर, ईयर मेकिंग बैलेंस, वी आर रनिंग प्रॉपर, ईयर मेकिंग बैलेंस। इसका डिटेल्स हमारा ह्यूमन ईयर में देखेंगे हम, पर तब तक तो याद रखिएगा स्टैटो एकोस्टिक ऑर्गन बोले तो ईयर नॉट ओनली फॉर हियरिंग एंड आल्सो फॉर बैलेंसिंग बोल के। टंग का टेस्ट बर्ड्स बता दिए ना हम, टंग का टेस्ट बर्ड्स वो तो हो गए ना? और क्या क्वेश्चन मार्क? डन। डेफ पर्सन कैनॉट बैलेंस, गुड क्वेश्चन। डेफ पर्सन में प्रॉब्लम होगा बेटा हियरिंग पार्ट का, बैलेंसिंग पार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। गॉट माय पॉइंट? हियरिंग पार्ट बोले तो कॉक्लिया बोलते हैं हम, नहीं हाँ अगर यहाँ पे लिखे तो फिर आएगा क्वेश्चन, सर कॉक्लिया क्या है, ऐसा। सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग हियर, बट ये पूरा आपको आने वाला है इन द फ्यूचर,
ये हमारा ईयर है बेटा, दिस इज एक्सटर्नल ईयर, एक कैनाल है टिम्पैनम, हमारा टिम्पैनम अंदर है देखो, देन मालियस, इंकस, स्टेपिस, ऐसा रहता। ओके, मिडिल ईयर का, ह्यूमन ईयर का। समवन आस्क्ड द क्वेश्चन, आई एम आस्किंग, आई एम आंसरिंग हियर। ये कॉक्लिया है बेटा, अगर कॉक्लिया में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका हियरिंग प्रॉब्लम रहता, इसके ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोल के रहता, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। These semicircular canals and vestibule are going for balancing, means ये hearing वाला है, ये balancing वाला है। So इसका problem होगा शायद बच्चों, that particular person who can't hear, और यहाँ पे problem होगा शायद, but यहाँ पे तो balancing organ अलग सा है ना बेटा। So that's why not a rule like that, that people that who can't hear balancing नहीं रहता, ऐसा कुछ rule नहीं है बेटा। Clear? Okay, chalo, moving on to the reproductive system in the frog. Reproductive system. So क्या बोल सकते हैं बेटा, male reproductive system, female reproductive system. That means we can say unisexual, है ना? Unisexual, frog is unisexual. और क्या? Sexual dimorphism is present. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फिर लिखेंगे बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आए तो यही आएगा। सो दैट्स व्हाई वी राइट इट बैक अगेन हियर। मेल का फीचर्स क्या है जो फीमेल में एब्सेंट है? आप बोलिए मेल का फीचर्स क्या है बेटा, दे आर व्हिच आर एब्सेंट इन द फीमेल? एक ओकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड्स on the first digit of the forelimb, copulatory pads रहता ना, vocal sacs and copulatory pads, which are present in the male. In female, they are absent. Vocal sacs and copulatory pads are absent. So, unisexual animal, sexual dimorphism is present. And फिर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? Because this is very, very important for examination point of view. So, चलो बेटा, ले लो फास्ट, ले लो स्क्रीनशॉट। सर व्हाई डू वी हैव ईयर्स? ईयर्स क्या मतलब? ये ईयर बोल रहे क्या? इसको ईयर नहीं बोलते बेटा, ईयर पिन्ना, इसको ईयर पिन्ना बोलते। ईयर बोले तो पूरा जो बाहर से अंदर तक पूरा बोल मिलके ईयर बोलेंगे हम। बाहर का ये है ना, नॉर्मल पीपल कैन से इट एज ए ईयर, वी आर बाईपीसी स्टूडेंट, ऐसा नहीं बोल सकते हम। ईयर पिन्ना है ये। तो आप क्या बोल रहे हैं, व्हाई वी हैव ईयर्स और व्हाई वी हैव ईयर पिन्ना? हाँ, इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं हम, ईयर पिन्ना, इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं हम। एक्चुअली हमारा तो कुछ काम नहीं है बेटा उसका। ओके, सो आप पूछे, हम दर्श इसलिए हम बता रहे हैं हम। इफ यू सी अदर देन ह्यूमन बीइंग, कोई भी हमारा एंसेस्टर्स देखे तो आपको, कोई भी और एंसेस्टर मींस मैमल्स को, अदर मैमल्स, कोई भी एंसेस्टर, एलिफेंट को देखो, ईयर्स मूव करता है, ऐसा है ना? एनी एनिमल कैन मूव देयर ईयर्स फॉर प्रोटेक्शन, नॉट टू एंटर माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स और जो भी इंसेक्ट्स, फ्लाइज। बफेले को देखो, दैट एलिफेंट को देखो, मंकी को देखो, सब दे मूव देयर ईयर्स, है ना बेटा? प्रोटेक्शन के लिए बोल सकते हैं हम, ईयर पिन्ना फॉर प्रोटेक्शन। हमारा क्या है, हाथ से ऐसा कर सकते हैं ना, दैट्स हमारा ईयर का मूवमेंट बंद हो गया, auricular muscles बोल के रहता, they became vestigial for us. Okay, clear? चलो, moving on to the male reproductive system. Male reproductive system. A pair of testes रहता बेटा, a pair of testes. The male reproductive system, a pair of
testes और क्या छोड़ दो वो स्टैटो एक्रोस्टिक को टॉपिक पे आ जा we are ready to answer all kind of your regular doubts general doubts in personal फिजिकल सेशन में आंसर करेंगे आप सबका yellowish in color wide in shade pair of testes yellowish in color beta wide in shade attached to the kidney that is very important attached to the kidney associated with the kidney beta associated with the kidney that means अगर आप kidney को देखें तो if you see the kidney above the kidney the testis is getting connected over above the kidney the testis is connected beta with the help of the connective tissue बोल के mesoarchium mesoarchium बोलते हैं हम testis connected to the kidney with the help of mesoarchium means it was associated with the kidney not only structurally also functionally ये आएगा एग्जाम में a double folded peritoneal layer पेरिटोनियम का मतलब मीसोडर्म लेयर a double folded peritoneal layer which connects the kidney a kidney है बेटा upper part of the kidney में that they are going to be connected over which connects the kidney double folded peritoneal layer which connects the kidney to the testes क्या बोलते हैं हम इसको mesoarchium okay और है बेटा from the testis से क्या आता है बेटा sperms will come है ना the 10 to 12 vasa efferentia 10 to 12 vasa efferentia यहाँ पे डालू चलो डाल देंगे क्या 10 to 12 vasa efferentia arises from the kidney like this they open into the Bidder's canal they open into the Bidder's canal here I'll show you all this in one single diagram but पहले तो individual representation देने दो हमको Bidder's canal finally continue as urinogenital duct beta Bidder's canal finally continue as urinogenital duct means क्या बोलना है हमको vasa efferentia from the testis ये testis है बेटा this is testis okay so ये है vasa efferentia so पूरा ऐसा बोलने का can't you see down okay एक काम करेंगे यहां तक करेंगे then after we'll see in the next diagram testis से vasa efferentia बोल के आया देखो बेटा the vasa efferentia getting arised in the testis opens into the Bidder's canal of the kidney किडनी में एक कैनाल रहता है इसको क्या बोले हम Bidder's canal of the kidney एंड बाद में क्या होता वो देखेंगे हम चलो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो टेस्टिस इज फेयर वाइड येलोइश
Okay, beta, any doubts? No. चलो मूविंग ऑन, पूरा मिलके एक बार दिखाऊंगा मैं. सो पहले एक पेयर ऑफ टेस्टिस डालेंगे हम, देन आफ्टर किडनी, पेयर ऑफ किडनी, टेस्टिस बेटा ऊपर. हाउ डज इट कनेक्टेड ओवर? द टेस्टिस कनेक्टेड ऊपर फैट बॉडीज बोल के रहता बेटा, दैट यहाँ पे इसके ऊपर फैट बॉडीज बोल के रहता. ओके, ये है टेस्टिस. ऊपर जो है ना, इसको फैट बॉडीज बोलेंगे हम, कार्पोरा एडिपोसा, स्टोरेज वाला, फूड स्टोरेज वाला फैट बॉडीज. ओके, सो देन अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज बिडर्स कैनाल. सो दैट व्हाट वी आर सेइंग बेटा, the vasa efferentia which is coming from the kidney, vasa efferentia who is coming from the kidney opens into the bidders canal, opens into the bidders canal, and finally urinogenital duct बोल के आता बेटा, that bidders canal से urinogenital duct. Okay, this urinogenital duct is going to open into the cloaca, urinogenital duct. This is another one, this is urinary bladder. ये क्या है बेटा? This is cloaca. Okay, urinogenital, this is urinary bladder. Okay, so single opening coming out through the cloacal aperture. So ये भी दिखाऊं आपको, यहाँ पे एनस रहता बेटा, एनस रेक्टम वाला एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल, गट. सो ये क्या बोले हम, एलिमेंट्री कैनाल का रेक्टम, रेक्टम ओपन्स इन द फॉर्म ऑफ एनस. नहीं, इसके जरूरत नहीं, आपको ये क्लोएका की इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा. क्लोएका रिसीव स्पर्म एंड यूरिन फ्रॉम किडनीज, क्लोएका रिसीव फिकल मैटर फ्रॉम द एनस. एलिमेंट्री कैनाल का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है ना बेटा, वो भी यहाँ पे आएगा. ओके, सो क्लोएकल अपर्चर इज द कॉमन ओपनिंग फॉर अनडाइजेस्टेड मटेरियल, स्पर्म्स, यूरिन. ये समझना है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. चलो, आप कुछ डाउट्स है तो पूछो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. that we are ending up female reproductive system and conclusion, that means pura frag ka ending tomorrow we are going to see. क्या प्लीज से? अच्छा, वेरी गुड गुड, अच्छा सा डाउट है बेटा. ईयर का अभी छोड़ा नहीं क्या, ईयर कट ऑफ सो दे कैन बैलेंस. वो बैलेंस का छोड़ो, चैप्टर नंबर 19 डिस्कस करेंगे हम. चैप्टर नंबर 21 ईयर, वहां पे डिस्कस करेंगे. फ्रैग का बैलेंस छोड़ दो आप. क्या पूछे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वासा इफरेंशिया, वास डिफरेंस? अच्छा डाउट है बेटा. छोटा छोटा डक्ट्स रहता ना, इसको क्या बोले हम, वासा इफरेंशिया. वासा इफरेंशिया, डक्ट छोटा है तो, अगर बड़ा है तो वास डिफरेंस बोलते हैं हम. ओके, और वासा डिफरेंशिया भी बोल सकते हैं हम. वासा डिफरेंशिया एक ही डक्ट रहता, ऑल डक्ट्स इफ ओपन इनटू सिंगल डक्ट, इसको हम वास डिफरेंस. ओके, ये सिंगुलर है बेटा, वास डिफरेंस. वासा डिफरेंशिया प्लूरल. ओके, सो जस्ट याद रखिए, ह्यूमन बीइंग में भी आएगा ये. छोटा छोटा है तो वासा डिफरेंशिया बोलेंगे हम, बड़ा है तो वास डिफरेंस. क्लियर? ह्यूमन बीइंग में दोनों रहता है बेटा, वासा डिफरेंशिया आर देयर एंड वास डिफरेंस इज आल्सो देयर. चलो, विल डिस्कस
about the female reproductive system of the frog tomorrow. And thank you.